So, dear students, welcome to the open doubt session. So, in these doubts, I shall not only be sharing with you the solutions of the questions, I shall also be discussing how to approach an unknown question and how to leave that particular question at a particular moment, and how to try alternate approaches for the question. So we'll try to get the solutions also, but at the same time, we'll try to learn the approach as well as the alternative way to get the answer, right? I hope you will enjoy. You share your other doubts in the comment section or in the this sheet, so where we can keep discussing this. I'll try to discuss all the doubts as raised by you. तो let's get started. शुरू करते हैं भाई. पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो ये, the numbers from 1 to 37 are written in a line so that each number divides the sum of the previous numbers. If the first number is 37, so 37 is the number, right? So this is to be divided by next number, which is to be 1. 1 ही आएगा because 37 is a prime number. No other number can divide 37. So the next number has to be 1. The second, what would be the third number? ये third number क्या आएगा यहाँ पे? तो आपको सिर्फ यहाँ तक नहीं देखना है, एंड तक देखना है. अगर आप यहीं तक देखेंगे तो आपको हो जाएगा 37 और 1 क्या आ गया भाई? 39 आ गया, 38 आ गया. अब 38 को डिवाइड करेंगे 19 से डिवाइड कर सकते, बिल्कुल आ सकता है. बट इसके बाद 57 आ जाएगा. 57 को डिवाइड करने के लिए आपके पास क्या होगा? 19 तो ऑलरेडी हो गया, आपके पास 3 आ जाएगा. 57 ऐसे 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 करते चलेंगे. तो आपको ये देखना है कि ये 38 होगा या 2 होगा, राइट? देयर कैन बी सम ऑफ द प्रीवियस नंबर्स, ऑल प्रीवियस नंबर्स का सम आपको ये डिवाइड करना होगा यहाँ पे. तो इसमें you have to see what approach we can use here to select answer from 19 और 2. हो सकता है आप जल्दी जल्दी में 19 आंसर कर दें, बट 2 भी एक ऑप्शन है, बट आंसर दोनों में से एक ही होगा. ठीक हो गया ना बेटा? यस नो? यस. हाँ, जिसका डाउट है वो साथ में रिस्पॉन्ड किया करेंगे. तो इन दोनों में से एक होगा. अब हम थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे और देखेंगे कि कैन वी इलिमिनेट द आंसर, राइट? और अगर नहीं इलिमिनेट कर पाए तो तुक्का लगा देंगे. और अगर ये टीटा होता, टीटा ना होता, तो हम इस क्वेश्चन को, अगर हमारा सॉल्व नहीं होता तो नहीं अटेम्प्ट करते, या फिर हम ऑप्शन से देखते, राइट? यहाँ पे हमें पता लग गया कि या तो 19 है या 2 है. तो 37 + 1 + 9 ये कितना हो गया? 57 हो गया. तो 57 के लिए या तो मेरा 3 आएगा या 3 आएगा या 19 आएगा. 19 तो आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी हमने यूज कर लिया, तो 19 कट कर दिया, 3 ही आ गया. तो ये हो गया 60. 60 के लिए मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस होगी. कौन कौन सी? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 10, राइट? आगे 12 15 15. What else? 60. 15 20. 20, then 30. 30, and 60. then 50. So here we have to see, we have already used 1, we have used 3 as well. So the number would be anything other than these numbers. So let us say if we use 2, we have to use 31, right? So this way it will go on. बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है. अब हम इसको पीछे से ट्राई करने की कोशिश करते हैं. What would be sum of all the number? 37 into 38 divided by 2. This would be sum of all the numbers. Yes, no? Yes, sir. So the sum of this would be 37 into 19, isn't it? Bolo? Yes, sir. Yes, sir. Let the last number is x. Let the last number is x. So sum of the previous number should be right? Yes, no? Yes, sir. And it should be divisible by x. Yes, sir. So from here 37 into 19 by x minus 1 should be a natural number.
So this should be divisible by x. Yes, no? Yes. And what is x? 1 to 37. So x cannot be 37 because already we have used. Yes. It will be 19. If 19 is the last number, then the first number would be 2. got that? Yes, sir. ठीक हो गया बेटा? सबको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, very good. Okay, so dear boys and girls, the answer for this question is your 2, right? Now you can try it with other numbers also, right? That would be your learning. You try it with 39, you try it with 25, right? You try it with 57, what you are getting, or you are getting, right? What could be the numbers? Can you make a sequence, or will there be some number where this may not be possible, or will this be possible for all the numbers? That is where your learning will happen. Are you getting it? क्वेश्चन से लेयरिंग ऑफ द क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है आपने. ओके, लेट अस से इफ 37 is the first number, 1 is the second number, 2 is the third number, what would be the fourth number? Right? This is sum is 40. So what all possibilities are there? 1, 2, 4, 5, 8, again 10, 20, 40. 40 cannot be there. Yes, no? Yes, sir. 1 आ जाएगा तो 41 कैसे बनेगा? 41 को कैसे डिवाइड करेंगे? It will be a prime number. Yes, no? So the answer Yes. is anything among them. अगर मैं 8 यूज करूंगा तो 48 हो जाएगा, ये भी. अगर मैं 5 यूज करूंगा तो उसके बाद सिर्फ 9 ही आ सकता है. नहीं, हाँ, उसके बाद सिर्फ 9 ही आ सकते हैं, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी यूज हो गया, 45 हो गया. ठीक है? Yes, sir. So it can be only 9 after that. 45 हो गया, 49, और फिर इसके बाद ऐसे 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 बनता रहेगा. So there may be some numbers where there is a restriction, there may not be a restriction for numbers, and we don't know how it will go, what will be the complete sequence. आप पूरा बैठ के आराम से ट्राई कर सकते हैं कि भाई चलो इसमें मैंने ट्राई कर लिया, फिर आगे ट्राई कर लिया, पूरा सीक्वेंस क्या बनता है. ठीक है बेटा जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डाउट. ठीक है, नेक्स्ट डाउट पे मूव करते हैं. कोशिश किया करो सोल्यूशन को ना हाइड किया करो, क्योंकि आई वांट टू टीच यू द अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन देख के तो क्वेश्चन हो ही जाता है, पर पेपर में सोल्यूशन थोड़ी होगा. पेपर में Yes. क्वेश्चन होगा, तो खाली क्वेश्चन दिखाने का है मेरे को, सो दैट आई कैन ट्राई डूइंग दैट. आई एम नॉट सेइंग आई विल बी एबल टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट? मैं कभी नहीं कर पाया हूं, मैं इतने साल से कैट दे रहा हूं. द बेस्ट आई कुड डू वाज 31 क्वेश्चंस राइट आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस in 2018 or 19, right? I have never attempted all the question. Last year it was 18, 19 question out of 22 which I could do, right? So even I get stuck in 1 or 2 questions, right? So but I will tell you when is the time to leave the question and not to waste the time on the question. That's very important part of learning in quant. Chalo, Bhag Singh, who is always in a hurry, walked up the escalator while moving the rate of 1 step per second, and so 20 seconds he reached the top. Next day he climbed 2 steps per second while it was moving the same speed, reached the top in 32 steps, right? तो अब क्या होगा? भाग सिंह एस्केलेटर की जो मूवमेंट है, escalator moved for because he is going with the double of the speed, right? Yes, sir. Speed double हो गया ना. So he reached the top in 32 steps, right? If the escalator had been stopped, how many steps did the escalator have from the bottom to the top? तो यहाँ कितने steps होंगे टोटल? ठीक है, अब मान लो टोटल स्टेप्स जो हैं आपके x हैं,
ठीक है, बोलो। भाग Yes, 20 किए, बाकी एस्केलेटर ने कवर किए, टोटल हमारे एक्स कवर हो गए। अब सेकंड स्टेप में भाग सिंह ने 32 किए, राइट? yes, sir. तो एस्केलेटर ने कितने किए होंगे? E. ये चीज समझ में आई? यस, टोटल स्टेप्स तो वो उतने ही चढ़ेगा ना भाई। सेम ही है। अगर मान लो टोटल 50 स्टेप्स हैं, ठीक है, या तो मैं चढ़ूंगा या एस्केलेटर चलेगा। अगर मैं बिल्कुल नहीं चढ़ूंगा तो पूरे का पूरा स्टेप एस्केलेटर चलेगा। बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब एस्केलेटर की अपनी स्पीड है, मेरी अपनी स्पीड है। हमारी एक स्पीड के साथ एस्केलेटर को 20 सेकेंड्स लग रहे हैं। दिस टुक 20 सेकेंड्स, राइट? हाउ मच टाइम दिस टुक? But then, sir, this equation, first and second equation is one and the same thing now after we open the bracket. सेकेंड्स लगे ना इसमें, Yes, sir. नहीं? हाँ या ना? ये मैं 20 सेकेंड्स में कवर कर रहा हूं, ये कितने सेकेंड्स में कवर हो रहा है? बोलो बेटा। 16. भाई देखो, बेसिक फंडा समझो, टोटल स्टेप्स इन द एस्केलेटर इज सेम, राइट? Yes, sir. ठीक है, अब क्या है कि एक मैं भाग रहा हूं, एक एस्केलेटर भाग रहा है, ठीक है? ठीक हो गया? Yes, sir. अब मैं 10 स्टेप चल रहा हूं, एस्केलेटर T-10 चल रहा है। Yes, sir. अगर मैं 0 चलूंगा एस्केलेटर T चलेगा। अगर मैं 50 स्टेप चलूंगा एस्केलेटर T-50 स्टेप चलेगा। ये वाला फंडा क्लियर हो गया जो मैंने यहां समझाया? Yes, sir. अब इसके बाद क्या है कि इस प्रोसेस में 20 सेकंड लग रहे हैं, मेरे को भी 20 सेकंड लग रहे हैं, एस्केलेटर को भी 20 सेकंड लग रहे हैं, राइट? Yes, sir. इस प्रोसेस में 32 स्टेप्स के लिए मेरे को 16 सेकंड्स लग रहे हैं, तो एस्केलेटर को भी 16 सेकंड्स ही लगेंगे। Yes. तो एस्केलेटर 20 मिनट में ई स्टेप्स करता है, 16 मिनट में E-16 स्टेप्स करता है, T-12 स्टेप्स करता है, सॉरी। यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. तो दिस लैक ऑफ टाइम इज लेस नंबर ऑफ स्टेप्स। अब इस रेशियो को कर लो, 5:4। Yep. So this will also be 5:4. So this will be 60, this will be 48. तो पहले वो 60 स्टेप करता था, वो 48 स्टेप करता है। 20, 60, 80। ठीक है बेटा? Yes, sir. एस्केलेटर स्टेप को अच्छे तरीके से मास्टर करो, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करो, उस पर टाइम लगाओ, उसके साथ डिस्कशन करो, फिर अपने आप आएगा। खुद से बना के देखो, जब एक बार पता चल गया ना कैसे बनाया है, फिर खुद से फिर बनाओ और उसको कंपार्टमेंटलाइज करो। अच्छा, पहले कॉन्सेप्ट में हमने ये समझा कि क्या एस्केलेटर के स्टेप्स सेम हैं, या इधर आई विल ट्रेवल और एस्केलेटर विल ट्रेवल, राइट? सो इफ देयर विल बी चेंज इन द स्पीड ऑफ माइंड, एस्केलेटर की स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है। टीएसडी की अगर आप पहली क्लास याद करोगे तो उसमें मैंने कहा था कि टीएसडी के क्वेश्चनों में 3 चीजें ही होती हैं, या टाइम कांस्टेंट होता है, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो आ जाता है, या स्पीड कांस्टेंट होती है, टाइम और उसका रेशियो आ जाता है, या डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, उन दोनों का रेशियो आ जाता है। ठीक है? 99% of the question from TSD are based on this small concept only, that speed is directly proportional to distance if time is constant. Speed is directly proportional to time, inversely proportional to time if distance is constant. And if speed is constant, distance is directly proportional to time. ये चीज समझनी है आपने। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ में एक चीज कांस्टेंट होएगी ही होएगी हर क्वेश्चन में।
जैसे मेरे लिए मतलब भाग सिंह के लिए क्या था भाई, टाइम भी चेंज हो रहा है, राइट, और उसकी क्या कहते हैं डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना उसका स्पीड है, जो उसका स्पीड है वो प्रोपोर्शनल हो गया कितने स्टेप्स करेगा। पहले वो 20 स्टेप्स कर रहा है, फिर वो 32 स्टेप्स कर रहा है, इसकी स्पीड डबल हो गई। बट इन केस ऑफ एस्केलेटर स्पीड कांस्टेंट है, राइट। अब जब एस्केलेटर की स्पीड कांस्टेंट होगी, कम टाइम कम स्टेप्स, राइट, कम डिस्टेंस, मोर टाइम मोर डिस्टेंस, राइट। तो दो सिचुएशन बन गई। क्या सिचुएशन बन गई? पहली सिचुएशन जब उसने 20 किए थे, इसने बाकी वाले किए थे। दूसरी सिचुएशन जब उसने 32 कर दिए, इसने उसके बाकी वाले कर लिए। तो पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन में इसको 12 स्टेप कम लगे। पहली सिचुएशन में और दूसरी सिचुएशन में इसको जो टाइम लगा वो 4:5 में था, तो उससे निकल गया अपना। ये 4:5 में तो ये 60 स्टेप्स किए होंगे, इधर 48 किए होंगे। क्योंकि जो उसकी रेशो होगी आपकी स्पीड की, वही रेशो होगी डिस्टेंस की। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको देखना रहता है। आपको बोला था इसके ऊपर लिखिए किस किस का डाउट है, डाउट नंबर 1, डाउट नंबर 2। हाँ, इसको एंटर कीजिए। ये इसके साथ क्यों चिपका हुआ है इसको? चलो कोई बात नहीं। ये क्रॉस क्यों किया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, वैसे आ रहा होगा, ये गलत है क्वेश्चन। हाँ जी, इसका रेजोल्यूशन थोड़ा कम है। थोड़ा अच्छा देखा कीजिए ताकि अच्छे रेजोल्यूशन वाला हो। एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर। सर्कल का एरिया दिया हुआ है, 4 स्मॉलर सर्कल है। टोटल एरिया कवर्ड बाय ऑल 5 सर्कल। लो भाई, इतना मतलब फालतू का क्वेश्चन कब कराएंगे? मैंने आपको बताया होगा कि ये सर्कल और ये सर्कल के रेडियस का रेशियो क्या होता है? √2+1 √2-1। ठीक है बेटा। जब भी सर्कल के उसके कॉर्नर में सर्कल आता है तो रेशियो क्या होता है? √2+1। और ये अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स होता है। अब अगर ये 5 to 6 टाइम्स के बीच में, अब अगर ये रेडियस का रेशियो है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? राइट, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरिया? अब इसको अगर रैशनलाइज करना है तो ये आ जाएगा √2+1 रेशियो 1। इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको स्क्वायर करोगे तो ये तो 1 आ गया इस साइड, तो इस साइड ये आ गया। ठीक है, और या उल्टा आ गया, इधर 1 आ गया और इधर √2-1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा। यस। ठीक है, तो अगर इसका एरिया ये है, इसका एरिया किसका 196 है, किसका? इसका। तो इसका एरिया क्या हो गया? 196 इंटू √2-1 का होल स्क्वायर। √2-1 क्या होता है? 0.414, राइट, यस। -1 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर फाइंड करो कितना आ गया? 0.414 इंटू 414, राइट। सो ये 4 को किया 1656 414 1656। वहां पे आपके पास कैलकुलेटर होगा तो फटाफट से कैलकुलेटर लगा दीजिएगा। ठीक है, 6 आ गया, 9 आ गया, एंड ये 2 आ गया, 2 नहीं 3 आएगा, और इफ आई हैव डन इट राइट 11 11 एंड 1 12, और नहीं कुछ गड़बड़ कर दी हमने। ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, 9 आ गया, ये ऐसे आएगा, ये वाला 6 आएगा। सर स्क्वायर का एरिया दिया है ना 196। 3, एक मिनट बेटा, और ये
3 और ये एक कैरी आ गया 11 सर ये 7 वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लेना है क्या? 0.17 राइट इंटू 196 हाउ मच इज दैट? ये कैलकुलेटर से कर लीजिए, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बताओ भाई क्या हो जाएगा? 33 क्या 33.32। अरे 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 अरे, ये एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। एरिया ऑफ क्या दिया हुआ है? ये सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया 196, तो ये 14 होगी ना इसकी साइड, तो रेडियस कितना आ गया? बड़ा आर 7 आ गया, बोलो। यस। और छोटा आर क्या आ गया भाई? छोटा आर आ गया आपका, बताओ बताओ, 7 इंटू √2 - 1 √2 + 1, ठीक है? Yes, बोलो sir. जी। ठीक है, तो अब इसका जो एरिया हो गया, बड़े सर्कल का एरिया क्या हो गया? पाई इंटू 7 स्क्वायर प्लस छोटे सर्कल का क्या हो गया? 4 इंटू पाई इंटू 7 इंटू √2 - 1 अपॉन √2 + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ये कैलकुलेटर की मदद लगेगी इसमें। तो 22 इंटू 7 डिवाइड बाय 7 क्या आ गया? 154 आ गया ये, प्लस 154 इंटू, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये रैशनलाइज करके आ जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, उसको फिर स्क्वायर करना है, तो इसकी पावर 4 आ गया। तो ये करिए, √2 - 1 की पावर 4, .0294. मैं ये करके दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट, मेरे पास भी कैलकुलेटर है और हमने किया। फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ आपको। 154 नहीं, पहले हम करेंगे √2 - 0.414 रेज टू पावर 4, 0.02 आ रहा है ना, 0.029 मल्टीप्लाइड बाय 154 मल्टीप्लाइड बाय 4, 18 एरिया आ रहा है इनका, तो 154 + 18 172, ठीक है? ये आ जाएगा बेटा, क्योंकि इनका जो इनका रिलेशन होता है अप्रोक्सीमेटली 1:6 होता है। किसका? इन साइड्स का, है ना, मतलब इसके और इसके रेडियस का, और एरिया का रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1:36 हो जाएगा। उससे थोड़ा सा कम होता है, वो एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा हमको, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 1:36 हो जाएगा, तो 1:36 जो एरिया हो गया। अब 4 हैं आपके, ठीक है, तो 1/9 हो गया अप्रोक्सीमेटली एरिया, ठीक है ना, क्योंकि 4 हो गया ना बेटा, ये 4 सर्कल हो गए, तो 1/9 हो गया, तो 154 का अप्रोक्सीमेटली 9th पार्ट। बड़ी एग्जैक्ट करने के लिए आपको ये कैलकुलेशन को थोड़ा और मास्टर करना पड़ेगा, ठीक है? आपको ये तो पता ही है कि जो रेडियस का रेशियो होता है वो क्या होता है? √2 - 1 रेशियो √2 + 1, ठीक है? या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, √2 - 1 का होल स्क्वायर रेशियो 1। ये रेडियस का बता रहा हूं मैं, रैशनलाइज करेंगे, या 1 रेशियो √2 + 1, ठीक है? इसका स्क्वायर, ये किसका रेशियो है? रेडियस का रेशियो, इसको स्क्वायर करो, 1 रेशियो 2 + 1 + 2 √2, राइट? बोलो बेटा, कितना आ गया? 3 + 2 √2 आ गया। इसका फिर Yes. स्क्वायर कर लो, 9 + 8 + 12 √2, गॉट इट? So this is 17 + 12 into 1.414, तो ये कितना आ जाता है अप्रोक्सीमेटली? 12 into 14 कितना होता है? 168। यस सर। तो ये अप्रोक्सीमेटली 17 हो गया, तो 17 + 17 34 हो गया।
तो इसके और इसके एरिया का रेशो 1:34 हो गया अप्रोक्सीमेटली। ठीक हो गया बेटा? ये नई चीज निकल के आ गई, ये नया एल्गोरिदम बन गया। अब नेक्स्ट कभी भी एरिया आएगा कि भाई सर्कल का एरिया जो है वो 300 है, इस वाले सर्कल का एरिया बताओ, आप बोलोगे सर 300/34, एक्यूरेट अप टू 2 डिजिट्स, राइट? Yes. ठीक है, तो अब 34 हो गया, तो हम लिखेंगे 154 × 4 डिवाइड बाय 34। ये निकाल लो बेटा कितना आता है। आई होप ये वही देगा। 18.1. हाँ, तो नियरेस्ट करना है तो इजी है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना। 154 × 4 डिवाइड बाय 34, 18.1 आ गया। ठीक है, तो 18.1 आ रहा है, तो यू कैन वेरी नियरेस्ट से ना 154 172। ठीक है, बोलो जी। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, वेरी गुड क्वेश्चन, बिट कैलकुलेशन इंटेंसिव, बट होने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, डाउट नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 60 किलोमीटर। टीएसडी का क्वेश्चन है, हमें पता लगा। पार्था एंड नारायण स्टार्ट फ्रॉम ए एट द सेम टाइम एंड मूव टुवर्ड्स बी। ठीक है, तू चल मैं आया वाली कहानी लग रही है, राइट? Yes, sir. बोलो, तो इसको 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं पार्था को। पार्था टेक्स 4 आवर्स, तो पार्था स्लो हो गया ना, पार्था का टाइम t+4 हो गया, नारायण का टाइम क्या हो गया? t हो गया। मोरोवर पार्था रीचेस द मिड पॉइंट ऑफ ए बी 2 आवर्स बिफोर नारायण रीचेस बी। हाँ, ये 2 आवर्स बिफोर नारायण रीचेस बी। नारायण जब बी पहुंचता है उसके दो घंटे पहले वो कहां पहुंचता है? Midpoint. मिडल में पहुंचता है। अगर पार्था को टोटल टाइम t+4 लग रहा है, तो मिडल में पहुंचने में कितना लगेगा? ठीक है, Yes. Yes, sir. तो दिस टाइम इज -2 आवर्स इज इक्वल टू टी टाइम। पहले पहुंच जाता है तो प्लस आएगा। ठीक है, ठीक हो गया या नहीं हो गया? Yes. Not understood. 4 + 4 इज इक्वल टू 2t। t इज इक्वल टू 8। t सर अगर ये इक्वेशन आपने कैसे बनाई? भाई t आधे रास्ते में कितनी देर में पहुंचेगा? पार्था। t+4/2. Yes, sir. हाँ, और ये वाला पूरे रास्ते में नारायण कितनी देर में पहुंचेगा? तो टी में ही सही। पहुंचेगा ना नारायण, तो पूरा रास्ता। नारायण तो भी टी टाइम में पहुंच रहा है। Okay, sir. Got it. इन दोनों में 2 घंटे का फर्क है। अब कौन ज्यादा है? यही ज्यादा है होएगा। ठीक है, क्योंकि Yes. नहीं तो फिर उसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ गया? t8 आ गया। तो ये 12 घंटे लग रहे हैं, ये 8 घंटे लग रहे हैं। पार्था की पूछी होती 5.5 7 आ जाती, और इसकी आ गई 5। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम्हारा आंसर 3 आ रहा है, 3 क्यों मार्क किया तुमने? सर नहीं याद, मतलब पहले का डाउट है काफी। नहीं बेटा, देखो ना, 3 अगर मार्क किया तो इसकी 20 आवर्स आ गए, इसके आगे 16 घंटे। ठीक है, बोलो। यस। यस सर। अब ये आधा डिस्टेंस 10 घंटे में कवर करेगा। यस सर। इसमें तो 2 घंटे का गैप नहीं है ना। यस सर। यस नॉट सर। बी द आंसर। तो अगर आपका आंसर श्योर नहीं है, आप तुक्का मार रहे हैं, तो कम से कम उसको वेरीफाई तो कर लो कि मेरा तुक्का चल रहा है या नहीं चल रहा है। यस चलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट बेटा। पढ़ो क्या है? How many 5-digit numbers, each greater than 10,000 and each having all 5 digits distinct, are greater with all digits in ascending or descending order? हाउ मेनी 5 डिजिट ग्रेटर देन दिस? ठीक है, तो कितने बनेंगे डिजिट? कितने बनेंगे भाई हमारे 5 डिजिट वाले? 1 2 3 4 5। ये कितने हो सकते हैं? 9। बोलो, Yes sir. पहली जगह पे 9 आ सकते हैं ना, Yes sir. फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6। दिस इज द नंबर ऑफ डिजिट्स Yes sir. that can be found.
Yes, sir. Yes, sir. डिवाइड बाय, नाउ जितने भी ये डिजिट बने, राइट, इन डिजिट्स को हम क्या कर सकते हैं, या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। सब मिक्स भी तो हो सकते हैं। हाँ, तो जितने ये पॉसिबिलिटी बनेंगी, जितनी ये पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, जितनी भी पॉसिबिलिटी बनेगी, उसमें से जैसे मान लो ए बी सी डी ई आ गया, ठीक है, बन गए ए बी सी डी। यस सर। अब ये टोटल कितने बने, 6 फैक्टोरियल बने, सॉरी 5 फैक्टोरियल बने। यस सर। अब 5 फैक्टोरियल में से 2 केसेस ही होंगे, एक में असेंडिंग में, एक में डिसेंडिंग। यस सर। तो इंटू 2 बाय 5 फैक्टोरियल, ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। तो 2 डिवाइड बाय 60 आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, इसको डिवाइड बाय 60 कर दो, ये कट गया, 10 पे कट गया, तो 9987। तो इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब 0 आ जाएगी तो वो डिजिट बनेगा ही नहीं, ठीक है। यस तो सर। मैं क्या करता हूं, इसमें से क्या करेंगे, हम सारे डिजिट अलग अलग लेने पड़ेंगे, 2 केस लेने पड़ेंगे, व्हेन यू आर यूजिंग 0, व्हेन यू आर नॉट यूजिंग 0, ठीक है। सर जीरो वाले में क्या गलती थी? 0 वाले में ये कि वो केस बनेगा ही नहीं ना। 0 वाले में जैसे मैंने ले लिया 0 2 3 5 7, तो ये नंबर तो बना ही नहीं ना, यस सर। तो इसका ओके सर, असेंडिंग गॉट डिसेंडिंग लेना ही नहीं। यस सर, यस सर, यस। बट 7 5 3 2 0 हम लेंगे, यस सर, यस सर, गॉट इट। तो इसमें एक ही केस लिया जाएगा इन जब 0 ले रहे हैं। तो लेट अस से व्हेन वी आर नॉट टेकिंग 0, 1 2 3 4 5, वी आर नॉट टेकिंग 0, 9 8 7 6 5, राइट, बोलो। यस सर। Yes, sir. And this divided by 5 factorial into 2, because either ascending or descending. So 5 4 3 2 1, तो 5 से 5 गया, 3 2 से 6 गया, 4 2 से 8 गया, 9 7 जा 60। तो 63 नंबर आ गए जब हमारा 0। सर ऊपर 4 भी आएगा ना, 4 नीचे 8 ऊपर है। अच्छा, 2 और आएगा, 4 आएगा सर, 8 into 2 16 डिवाइड बाय 4। ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, सॉरी। तो 63 into 4 272, नहीं 252, 252 नंबर आ गए जब 0 यूज नहीं हो रहा। नहीं किया। अब हमने 0 को यूज करना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले नंबर पे कौन कौन आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं, ठीक है, बोलो। यस सर। कोई भी नंबर एक आ जाएगा, 9 आ गया। अब कितने नंबर बच गए मेरे पास, 9 बच गए, एक मैंने 0 कंपल्सरी ले लिया, कितने बच गए, 8 बच गए। सो 8 into 7 into 6, मुश्किल हो जाएगा काउंट करना, काउंट कैसे करेंगे, माइनस करेंगे क्या, या फिर हम क्या कर दें, इसको 4 से गुना कर देते हैं, करके देखते हैं। 9 into 8 into 7 या into तो यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है, या यहाँ आ सकता है। अब जब मेरा डिसेंडिंग लेंगे तो 0 लास्ट में ही आना पड़ेगा, ठीक है भाई, बोलो। यस तो 0 को Yes, फिक्स sir. कर दो, इधर कर दिया 0 फिक्स, बोलो। यस सर। तो Yes, sir, लास्ट small में is 0 no. फिक्स, 1 2 3 4 5 6, ये सब नंबरों में 0 यहाँ फिक्स है, ठीक हो गया। अब ये कितने Yes. नंबर बच गए, 9 8 7 6, बोलो। Yes sir, yes। डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2, सो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 48, ये गया, और ये ठीक हो गया, 24 120, है 126. 126 आ गया। 126 आने से 378. नहीं, इसमें इंटू 2 नहीं करेंगे, इंटू 2 इसलिए नहीं करेंगे
क्योंकि अगर मेरा 3478 है तो 3478 नहीं लिया जाएगा, 8743 ही लिया जाएगा, क्योंकि पीछे तो 0 पक्का है ही है ना भाई, लास्ट में तो 0 है ही है ना, तो डिसेंडिंग वाला केस ही लेंगे ना, इसमें तो असेंडिंग वाला केस बनेगा ही नहीं, तो ये वाला 2 नहीं आएगा, तो क्या आ गया 378। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कहां से आया ये क्वेश्चन? सर डोंट नो, मतलब वो इसीलिए रखा हुआ था वो ऊपर से। ऑप्शन आया होगा ये, अच्छा क्वेश्चन, बहुत हाँ बढ़िया। चलो सर नेक्स्ट। डाउट है हाँ बोलो। इसी में डाउट। सर हाँ इसमें बोलो। जैसे आपने बताया था 10,000 डिजिट जीरो नहीं आ सकता, बट हमने जो डिजिट 9 × 9 × 8 × 7 किया था, तो 9 डिजिट्स तो नॉन जीरो ही थे ना। नहीं, पर उसमें पंगा हो रहा था ना कि वो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स तो आ गए मेरे, यस सर। बट जो नॉन जीरो डिजिट है वो तो दोनों साइड बन रहे हैं, ठीक है, यस सर। तो असेंडिंग केस भी बन रहा है, डिसेंडिंग केस भी बन रहा है, यस सर। पर जो जीरो वाला केस है उसका तो डिसेंडिंग केस ही बनेगा ना, असेंडिंग केस तो बनेगा ही नहीं, राइट राइट राइट। तो उसमें लिए वी कैन नॉट काउंट इट दैट वे। यस सर, गॉट इट। इन केसेस को अलग से काउंट करना होगा, इन केसेस को अलग से काउंट करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ये थोड़ा सा कभी भी स्क्रीनशॉट लेना है ना जिसने भी, वो थोड़ा बढ़िया लिया करो, रीडिंग में अच्छा रहता है, वीडियो में भी अच्छा आता है। जैकी's telephone number is this: if the digits are arranged in all possible, the resulting number written in ascending order, and 360 second number would be 5461429 53 है सो, ठीक है। कौन सा नंबर पूछा आपसे? 3602वां नंबर, ठीक है। तो 3601 नंबर निकलने चाहिए पहले उससे, बोलो। यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये रिवर्स हो गया, रैंक पहले रैंक फाइंड करना होता था, अब रैंक नहीं नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है बेटा, ठीक है। पुट देम इन Yes, sir. असेंडिंग ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6 9, पुट कर दिया, यस सर। ठीक है। फॉर एवरी नंबर देयर विल बी 6 फैक्टोरियल नंबर, यस 7। 6 फैक्टोरियल बेटा, फॉर एवरी नंबर। जब पहली स्टेज पे 1 आएगा तो उसके पीछे कौन सा नंबर आएगा? 6 ओके फैक्टोरियल यस नंबर आएंगे यस ना उसके पीछे, यस। ठीक है। तो इसको 720 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 5 आ गया। यस तो 1 2 3 4 5 5 नंबर निकल गए होंगे, तो मेरे 3600 नंबर निकल गए। अब 3600 नंबर निकलने के बाद कौन सा नंबर आएगा? 6, एंड ऑल इन द असेंडिंग ऑर्डर, 6 1 2 3 4 5 9। ये मेरा कौन सा नंबर है? 3601वां नंबर है। 3602वां नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट नंबर सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे, 6 1 2 3 4 9 5। सर, ये 720 से डिवाइड करना है। हाँ, कितने 36। बार 720 चाहिए होगा? जब 1 आएगा फर्स्ट नंबर पे तो 720 नंबर क्रॉस हो जाएंगे, जब 2 आएगा तो 720 नंबर क्रॉस हो जाएंगे, जब सो 3 उसके आएगा तो 720 नंबर क्रॉस हो जाएंगे। सो उसके बाद 3600 कैसे आया? 5 बार करोगे तो 3600 हो जाएंगे क्रॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये मान लो मेरे से 3700 नंबर पूछता, अब ऐसा है ना, इसको थोड़ा घुमा के देखो क्वेश्चन को, 370 सेकेंड नंबर कौन सा होगा ये पूछता अगर, ठीक है। यस सर। तो 1 2 3 4 5 6 9, तो हमारे पहले 6 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल इज 720, 5 फैक्टोरियल इज 120, 4 फैक्टोरियल इज 24, ठीक है। तो पहले मैंने 720 को यूज करना है, तो 1 2 3 4 5 ऑल 5 यूज करके 6 यहां आ गया, ठीक है। 6 को क्रॉस कर दो तो 3600 क्रॉस हो गया मेरा,
बोलो। Yes, sir. अब यस मेरे सर। को 102 और चाहिए। अब 102 चाहिए तो इसको तो मैं यूज नहीं कर सकता 5 वाले को, ठीक है। Yes, sir. ये 120 खा जाएगा अगर इसका एक सर्कल मारा, तो इसीलिए इसमें 1 ही लिख देंगे, ठीक है। तो अभी मेरे कितने नंबर गए? अभी 3600 नंबर इसने गए, इसने खाए 6 फैक्टोरियल, इसने खाया 0 नंबर ठीक है। अभी भी मेरे 102 नंबर पड़े, फिर मैं 24 से डिवाइड करूंगा। 24 जा 96, तो इसने खाए 96 नंबर, तो 102 में से 96 माइनस कर दिए, कितना आ गया? 16 नहीं 6, बोलो। Yes, sir. तो मेरे को 4 नंबर खाने हैं, 1 2 3 4 5 आ गया, तो ये नेक्स्ट नंबर आ गया मेरा 5। ये मेरे 5 के आने से पहले कितने नंबर चले गए मेरे? 1 2 3 4। इन 4 नंबरों ने ईच ने 24 नंबर खाए होंगे, ठीक है। यस, Yes, sir. ठीक है। तो 6 बच गया। अब 6 में 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 6, ये 6 होता है, ये 3 फैक्टोरियल। Yes, sir. Yes. तो इसका एक ही खाना है, पर अगर इसका एक खा लेंगे हम तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल आने से क्या आ गया? 6 फैक्टोरियल आने से 6 आ गया, तो पहले ही लिखना है 6 1 5 1 यूज हो गया, 2 आ गया। बाकी सारे नंबर सेम सीक्वेंस में, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 9। तो ये जो नंबर आ गया, इस नंबर से पहले मेरे 3702 नंबर यूज हो चुके हैं। अब मेरे को इससे पिछले वाला नंबर चाहिए होगा, ठीक है, इससे एक कम वाला। तो इससे कम वाले के लिए मैं जाऊंगा 61614, उसके बाद 9432, ठीक है। ये मेरा नंबर जो हो गया 3702th नंबर हो गया, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हाँ जी। Unequal side of an isosceles triangle is 6 times the in radius of the 6 times in radius। बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। किसका डाउट है बेटा ये? So, mine and Jason's. ये क्या है? एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। थोड़ी सी मैं ऐसे बना देता हूँ, इजी रहेगी अंडरस्टैंड करने के लिए। आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगी ये। Yes, sir. अब इसका क्या बताया इसने, क्या है? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? द अनइक्वल साइड ऑफ द आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ऑब्वियसली नीचे वाली साइड आ गई, ये Yes, वाली sir. साइड है, दिस इज 6 टाइम द इन रेडियस। इन रेडियस ये हो गया, राइट। तो मगर अगर 1 है तो ये 3 हो गया, बोलो। ये 6 टाइम है तो ये 1 है, ये 3 हो गया, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो आपको क्या पता करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो लॉन्गेस्ट साइड पता करनी है, ये मतलब मान लो इसको के मान लो, इसको भी के मान लो, इसका और शॉर्टेस्ट साइड का रेशियो पता करना है, ठीक है। तो इसकी जो फिगर है, क्योंकि 6 टाइम है, थोड़ी ऐसे फ्लैट बनेगी, ऐसे फिगर बनेगी, इजी रहेगा समझना आपके लिए। ऐसे बन गया, तो ये 1 है आपका, है 1, Right. ये 1 है, ये आपका 3 है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाली साइड निकल आई आपकी, कितनी आ गई है? 1 है, 3 है, कितनी आ गई? बताओ। तो जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो तो √10 आ जाएगा। √10 आ गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। पर इससे तुम्हारा वो नहीं निकलेगा ना, इन रेडियस का फार्मूला क्या होता है? इन रेडियस इज इक्वल टू ABC एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है।
एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, लॉन्गेस्ट सर साइड, अगर हम वो थोड़ी एक साइड तो सर वो भी सेम आ जाएगी, वो प्लेन लॉन्गेस्ट नेटवर्क साइड टू द थोड़ी। शॉर्टेस्ट साइड की रेशियो पूछिए, तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, लॉन्गेस्ट साइड टू शॉर्टेस्ट साइड की रेशियो पूछिए इसने। तो लॉन्गेस्ट साइड जो है उसको हम, ये लॉन्गेस्ट साइड तो यही होएगी ऑब्वियसली, शॉर्टेस्ट साइड ये होएगी, ठीक है। तो इसका रेशियो पूछा है इसने, तो इन रेडियस के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, एरिया में हीरोन फार्मूला से निकाल सकता हूँ, और चलो लेट अस ट्राई इट। तो दिस इज माय 6r longest side and let this be k, ठीक है, बोलो। Yes. So we can also write three, like three. The longest side will have 1 part 3 because it's tangent to the circle. हाँ 1-3 हुई है ना, 1-3 हुआ ना रिलेशन, और तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें। So tangent के वो equal length होती है ना सर्कल से, तो अगर ये 3. 3 है तो ये भी 3 हो गया, Yes sir. फिर Yes, उसके बाद बाकी तो पंगा तो इसका पड़ेगा ना, Yes sir. उस वो ऊपर वाली नहीं है ना, वी डोंट हैव एनीथिंग फॉर दिस। अच्छा सर अगर हम हो जाएगा, बताता हूँ। आइसोस्केलेस है ना बेटा, ये आइसोस्केलेस है तो आसान है काम। अब ये जो परपेंडिकुलर होगा ना, ये तुम्हारा जो इन रेडियस होगा ये सेंट्रोइड भी होगा, ठीक है बेटा। इन रेडियस क्या होगा साथ में, सेंट्रॉइड। centroid. तो एंगल बाइसेक्टर भी हो, ये साइड बाइसेक्टर भी तो हो गया ना ये, नहीं पर ये वो नहीं हुआ, जरूरी नहीं है इसको इस रेशियो में डिवाइड करे, ये मेरा साइड बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ना ये, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस प्ले करेगी कुछ ना कुछ रोल इसमें। ये राइट एंगल हो गया, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। अब ये डिस्टेंस का और इसका रिलेशनशिप में क्या फाइंड कर सकता हूँ क्या कुछ, आइसोस्केलेस है, this divides are in the ratio of this ratio। अब इन दोनों का रेशियो पता लग जाए तो इसका रेशियो भी पता लग जाएगा, ठीक है। अब ये जो रेशियो है वो यही है, अब ये 1 है मेरा, ये 3 है, ये √10 आ गया। सर अगर आपने सेंट्रोइड बोला तो वो 2:1 को कुछ हम कर सकते हैं। नहीं 2:1 आएगा नहीं ना बेटा, सेंट्रोइड बना नहीं ना, ये तो इधर जाएगा पर ये तो मिड पॉइंट नहीं है ना इसका। यस सर। इक्विलेटरल होती तो होता, कोई बात नहीं, इसको हम मानते हैं r, इसको मान लिया 6r, या 1 और 3 लेके शायद हो जाए, इजी हो जाएगा, सीधा k की वैल्यू आ जाएगी। लॉन्गेस्ट साइड टू द शॉर्टेस्ट साइड पूछा है, कोई बात नहीं फिर भी ये 3 हो गया, इसको हमने k ले लिया, ठीक है, ये भी 3 हो गया, ये k-3 हो गया, ये भी k-3 हो गया, और ये मेरा 1 है ही है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया k-3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इसका अंडर रूट, ये वाले पार्ट का राइट। प्लस 1, दिस इज इक्वल टू k³ k² - 3 स्क्वायर का अंडर रूट। बनी कुछ बात, यस सर। मतलब हमने इस पे ये लगाया, अब देखते हैं ये क्या बनता है हमारा। तो k² + 9 - 6k प्लस
1 का अंडर रूट प्लस 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का। अब इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड पे, तो ये हो गया, इधर -1 ला के स्क्वायर करो, इजी रहेगा। तो रहेगा के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k प्लस 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 9 माइनस माइनस 1 प्लस 1 माइनस माइनस के स्क्वायर माइनस 3 माइनस ट्वाइस ऑफ के स्क्वायर माइनस 9 का अंडर रूट। के स्क्वायर गया और 1 और 1 चला गया, ये हो गया 18 माइनस 6k इज इक्वल टू -2 रूट के स्क्वायर माइनस 9। -2 कैंसिल हो गया, 6k प्लस का हो गया, ये -9 हो गया। तो k माइनस 9 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 9, राइट। अंडरूट आके इधर स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया के स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18 के इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 9। के स्क्वायर कैंसिल हो गया और 18k इज इक्वल टू 90। k इज इक्वल टू 5 ये 5 आ गया अगर, तो ये तो 6:5 आ गई। हमें कोई गलती की होगी, बट यहाँ सर से वहाँ पे 3k नहीं आना था जब 6 के साथ -2 को काटा। हाँ 3k आएगा। मैंने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया हमने? सर सिर्फ k लिख लिया हमने। हाँ 3k माइनस 9 आ गया, ठीक है ना। 3k की जगह फिर यहाँ पे बन गया आपका 9k स्क्वायर, ठीक है। बोलो यस सर 9k स्क्वायर 9k स्क्वायर, ठीक है। क्या बनेगा ये? सर 54 भी आएगा ना, 2 इंटू 3k इंटू -9 -54k 18 की जगह पे। तो चलो 8k स्क्वायर -54k प्लस 90 इज इक्वल टू 0, ये बन गया। तो नहीं, कुछ गड़बड़ है, दोबारा करते हैं इसको, ठीक है। मतलब ये एक अप्रोच हो सकती है। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि हम इसको हीरोन सर फार्मूला, अगर हम इसको परपेंडिकुलर के लेके देखें वैसे कर हीरोन फार्मूला से करके देखते हैं इसको। हाँ जी, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, हम उसका इन रेडियस वाला लगा के देखते हैं। R इज इक्वल टू एरिया अपॉन S, नो, राइट। तो दिस इज माई K, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा मेरा? के स्क्वायर माइनस 9 का अंडर रूट, तो एरिया क्या हो गया? के स्क्वायर माइनस 9 इंटू 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू R कितना है? 1। सेमी पेरीमीटर कितना है? 2k प्लस 6/2, k प्लस 3 आ गया। चलो, इससे बहुत आसानी से निकल गया। लो जी, देखो बच्चों सभी लोग, आई थिंक निकलना चाहिए, ये अब निकल रहा है। ये परपेंडिकुलर है बेटा, ये k ले लिया, ये मेरा 3 है, तो व्हाट इज माई परपेंडिकुलर? 1/2 6 इंटू
परपेंडिकुलर कितना हो गया? हेलो हेलो, Yes, yes, sir. Yes, sir. Under a square K. minus 9 का अंडर रूट. सो दिस बिकम क्या होता है? आर इज इक्वल टू एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर. तो एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस, राइट? Right, sir. तो ये मेरा एरिया हो गया 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर एस. आर क्या है? 1 है. सेमी पेरीमीटर क्या है? 2k प्लस 6 डिवाइड बाई 2, मतलब k प्लस 3. यस, Yes, sir. ठीक है. हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, 3 आ गया, तो इसका स्क्वायर कर दो. 9k स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू k प्लस 3. इधर भी स्क्वायर होगा ना, k स्क्वायर प्लस 9 प्लस plus 6k. 6. 6k. ठीक है, तो ये आ गया 8k स्क्वायर माइनस 6k 729 और 9 माइनस किया. सर ब्रैक 9 ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके आपने 81 लिखा है। यहाँ 9 आएगा मतलब. हाँ तो माइनस 81 माइनस 9, फोर के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 45 इज इक्वल टू 0. तो फैक्टर क्या बन जाएंगे इसके? 45 इंटू 4 180, तो 180 12 गुना 15, 4k स्क्वायर माइनस 15k प्लस 12k माइनस 45 इज इक्वल टू 0. तो k माइनस 15, 4k माइनस 15, और दूसरा आ गया मेरा k Plus 3. प्लस 3. तो k इज इक्वल टू आइदर 3 माइनस 3 और k इज इक्वल टू 15/4. ठीक है, 15/4 आ गया. 15/4 कितना होता है? 3.75. 3 एक्चुअली ये इसने पूछा है हमें, तो 6 डिवाइड बाय 15 इंटू 4, ये आंसर आ जाएगा. 2 3 नहीं 5, 8/5. 1.6. 8/5 भी आ गया ना. लॉन्गेस्ट साइड टू द स्मॉलर साइड. 3.75 आ रहा है क्या? ये आ ही रहा होगा. 3.75 से हमारा ये बच गया 0.75. बोलो. वेरीफाई करना पड़ेगा, पर ये मेरे हिसाब से आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है, क्या आ रहा है? 15/4 आ रहा है k की वैल्यू. तो दूसरी वैल्यू क्या आ गई जो रेशो पूछी है उसने? तो वो आ गई 6 डिवाइड बाय 15/4 इंटू 2 आ गया, 5 आ गया, 8/5. 1.6 रेशो 1 आ रहा है भाई हमारा. तो ठीक है बच्चा लोग, अगर हमने कोई गलती नहीं की है. ठीक है, सर इसका बाद में मतलब नीचे सोल्यूशन दिया हुआ था, उसमें ट्रायंगल आइसोसेलेस में कुछ प्रॉपर्टी लगाई थी कि वो ऑल्टीट्यूड भी होता है. नहीं नहीं आइसोस्केलेस नहीं है ना भाई, वो नहीं है. आइसोस्केलेस में क्या प्रॉपर्टी लगेगी? चलो वेरीफाई कर लो इसको ना, वेरीफाई कर लेते हैं ना अपने आंसर को. हमारे पास तो वो है ना वेरीफाई करने का तरीका. यस सर. ये ले लिया, ये ले लिया, कैलकुलेटर उठाते हैं फटाफट वेरीफाई करते हैं.
तो ये कितना आ रहा है 15/4 आ रहा है, ये 3 आ गया, तो ये हाइट कितनी आ गई करो 225 225 माइनस नहीं डिवाइड बाय 16 -9 5 पॉइंट ये हाइट जो आ गई h आ गई वो आ गई हमारी 5.0625 इसका अंडर ले लो। हम्म, 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 एक मिनट ऐसे ही कर लेते हैं यार 225/16 -9 का अंडर, ठीक है 16 गुना 9 144 144/16 का अंडर क्या आ गया 12/4 3 आ गया ना ये। क्या कर रहे हैं हम ये सब्ट्रैक्ट नहीं किया था, 16 into 9 बताया था। 44 करो ना 144 करो 225 में से 144 गया 81 राइट 80 सर 81 81 का आ गया 9 आ गया ये 9/4 क्या होता है 2.25 तो ये 1.25 रह गया, ये 1.25 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0.75 आ गया, बन तो गया 345 का रेशो। ठीक है बोलो जी यस Yes, सर। sir. पाइथागोरस लग गई ना इस पे भी, तो बिल्कुल सही है हमारा आंसर 1.6 आंसर आएगा इसका। क्या आंसर दिया हुआ है सोल्यूशन ने तो solution में तो यही है कि प्रॉपर्टी लगाई थी कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल में कि ऑल्टीट्यूड लाइक कुछ होता है। आंसर क्या दिया उसने 1.14 निकाला है आंसर, यस यस तो गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। चलो नेक्स्ट, होता है कई बार कुछ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। There are 8 persons standing in a row. 4 distinct articles are to be given to 4 people. No 4 neighboring provides receives no 4 neighboring person receives an article. मतलब 8 लोग हैं, 4 आर्टिकल देने हैं। No 4 neighboring person receives an article. तो 4 लोगों को पड़ोसियों को नहीं देना है बीच में से, ठीक है। तो how many ways the articles can be distributed, ठीक है। तो देखो भाई लोग कितने आपके तो नो 4 का मतलब क्या होता है, मतलब 3 को हम एक साथ दे सकते हैं, मतलब 3 को दे सकते हैं। नहीं, नो 4 नेबरिंग पर्सन रिसीव, 4 लगातार एक साथ इकट्ठे आर्टिकल रिसीव नहीं करेंगे। 3 हो सकते हैं, एक को अलग देना पड़ेगा। नो 4 नेबरिंग पर्सन रिसीव्स एन आर्टिकल, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो ये हो गया कि ये चारों को, इन 4 में से, हाँ इन चारों को आर्टिकल नहीं मिलेगा। तो टोटल केसेस कितने बन गए 8C4 into 4 4 डिस्टिंक्ट आर्टिकल 8P4 बन गए ना। 8 7 6 5 कितना आ गया 8 7 6 5 बताओ भैया। 1680 हाँ जी 1680 1680।
ठीक है, अब 1680 टोटल वेज आ गए। ठीक है, So 1680. ओके सॉरी, 1680 केसेस आ गए। अब इसमें Yes. से वो केसेस माइनस कर दो जब ये इस चारों को मिलेगा। 1 2 3 4 मिल गया चारों को Yes. फैक्टोरियल इंटू 5, क्योंकि ये कोई भी हो सकते हैं, ये 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, ये 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी ये जो ये चौकड़ी है ये कहीं भी आ सकती है। ठीक है, Yes, sir. या चारों को एक बंडल मान लो, चार वो बंडल है जिनको मिला, बाकी चार ये हो गए, तो 8 हो गए, तो 5 हो गए, 5 फैक्टोरियल हो गए, -5 फैक्टोरियल कर दो, -120 कर दो, 1560 आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 1 2 1, फिर 2 2, फिर 1 फिर 3 3, फिर 1। हाँ ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? 567 आइटम्स है ना, बोलो। Yes, sir. अब एक तो इसका हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है कि वन टर्म का सम कितना है? 1 है। टू टर्म का सम कितना है? 3 3 टर्म्स का सम कितना है? 5 4। 3 का 4 है ना बेटा। 4 टर्म्स का सम 6. 6, और 5 टर्म्स का सम 8. 8, और उसके बाद बोलो। 9 ये आंसर गलत लग रहा है मेरे को, पक्का गलत है। 6 टर्म्स का सम 9, 1 2 3 4 5 6। 7 टर्म्स का सम 11, 8 का 13, 9 का 9 का 15. का 15। हम्म। 14 टर्म्स का सम 10. तो 24। ठीक है, ये 5 टर्म्स का सम 8 आ रहा है, सॉरी ये वाला नहीं लेना, 5 वाला 8 लेना। फोर्टीन टर्म्स का, इसके बाद कितनी टर्म्स आई है? 6 आ गई इसमें, तो 20 टर्म्स का सम 35। अब ये वाली वैल्यू कैसे आ रही है? 1 2 3 4 5 5, तो ये आ रहा है 6 इंटू 7/2 -1 से, और ये जो सम आ रहा है ये आ रहा है 6 स्क्वायर -1 से। ठीक है, ये है 5 स्क्वायर -1, ये है 4 स्क्वायर -1, ये है 3 स्क्वायर -1, तो 6 इंटू 7, तो मेरा 567 कहाँ पे पड़ता है? अप्रोक्सीमेटली 24 गुना 25/2, नहीं 23 गुना 24 बटा नहीं, ये करो तुम 40 इंटू 41/2, नहीं 35 इंटू 36/2, देखना कितना बन रहा है।
हम्म 630 630 सर 630 630 ज्यादा हो गया थोड़ा सा, तो 33 इंटू 34/2 561 561 561 -1 560th टर्म का 560 तक की टर्म्स का जो सम होगा वो होगा वो होगा आपका, क्या होगा, 33 का स्क्वायर -1। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? 51089 -1। हाँ बोलो। 1088। अब आपको कितनी टर्म चाहिए? और आसान कर देते हैं। यहां तक का फर्स्ट टर्म का सम कितना है? 3 का सम 4 फिर 9 उसके बाद 16 फिर 25। ठीक है। यस सो तो 1 4 9 16 25 ये सम आ रहा है मेरा। 1 एक टर्म का, 4 कितनी टर्म्स का? 3 टर्म्स का, 9 कितनी टर्म्स का? 6 टर्म्स का, ये 16 कितनी टर्म्स का? 1 2 3 4 10 टर्म्स का। तो n समीशन टर्म्स का सम n स्क्वायर है। ठीक है। n समीशन टर्म्स का सम कितना है? n स्क्वायर। समझ आया या नहीं? सो 30 इंटू 31, नहीं कितना था हमारा? 33। 33 इंटू 31 डिवाइड बाई 2 का सम 33 स्क्वायर होगा। ओके 561 टर्म्स का सम 1089 होगा। अब हमें चाहिए 567, 12 और ऐड कर देंगे तो ये आ गया 110। ये आंसर आना चाहिए। ठीक हो गया बच्चा? यस सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टाइम खा सकता है ये। ठीक है। यस सर 345 टर्म्स का सम कितना होगा देखना। 345 कहां से आएगा? 25 गुना 26/2, नहीं 24 गुना 25/2, यही आएगा। 25 गुना 26/2, ये आ गया 13 आने से तुम्हारा आ गया 325 टर्म्स का सम आ गया 625। राइट बोलो। यस सर। तो 625 आ गया। अब 345 टर्म्स का सम कितना आ गया? 665। ठीक है। बनाने वाले ने क्या किया, यहां तो 345 कर दिया, 345 का क्या बना दिया, 567। पर यहां पे आंसर चेंज करना भूल गया। ठीक है। क्योंकि जब सवाल की नब्ज समझ में आ जाएगी तो उसकी उसकी साइकोलॉजी भी समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है। यस सर। क्योंकि 665 ऐसे ही आंसर नहीं दिया है। ठीक है। और हमने आपको निकाल के भी दिखाया कि 665 कहां से आया। ठीक है। चलिए भाई पढ़ो बेटा। A chemist withdraws 15 liters of concentrated acid from a vessel full of concentrated acid and replaced it
with 15 liters of dilute base. हम्म Same process is repeated 2 more times. Total initial quantity is 90 liters and Hmm. price of 1 liter concentrated acid and dilute base is 88 and 34 rupees. हम्म Find average cost per liter of a mixture in the vessel after the entire process. कुछ नहीं है बेटा, देखो तुम्हारा 90 था स्टार्टिंग में, Yes, sir. तो हमने 2 more टाइम 3 बार किया ना उसको, Total 3 times. हाँ टोटल 3 टाइम्स किया, तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, दिस Yes, इज द sir. क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर लेफ्ट, ठीक है, बोलो। तो उसमें Acid का concentration हुआ ना? 125 216 हो गया, तो Yes. 216 ओरिजिनल हो गया, 125 लेफ्ट हो गया, Yes, sir. राइट। तो इसको इसमें से माइनस करो, कितना आ गया 91, Yes, sir. तो 91 बेस आ गया, तो ये इसका वॉल्यूम 125 है, इसका वॉल्यूम 91 है। 91. तो 88 इंटू 125 प्लस 91 इंटू 34 डिवाइड बाय 216 इज द एवरेज प्राइस, राइट। Right, sir. तो देखो कितना बनेगा ये, अब इस पे हम लगा देंगे अपना, मान लो एवरेज प्राइस 34 रुपए ही है, तो 125 आइटम का 54 रुपीज ज्यादा हो गया, 125 आइटम का जो डिवाइड करना है हमने 216 में, तो ये 4 पे कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 पे जब कैंसिल हुआ तो ये 125/4 कितना होता है बेटा, 31.25, अब इसमें ऐड कर दिया 34, आंसर आ जाएगा 64.25 इज द आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, गजब क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन भी लगा दिया इसमें हमने, और इसके अंदर एवरेज का कॉन्सेप्ट भी लगा दिया आपका, Yes, sir. ठीक हो गया, ध्यान से करना है इसको, ठीक है। Yes. सो आई विश यू ऑल एंजॉयड दीज 10 क्वेश्चंस डाउट, इसमें अलग अलग चीजें कवर की हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। आप Sir, और a thing. keep watching the channel for more such interesting sessions.